आप देख रहे हैं सी न्यूज और वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि ईस्टर को सेंट अल्फांसस कैथेड्रल चर्च में किस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जानेंगे कि हिंदू युवा वाहिनी जनपद बस्ती इकाई की चैत्र रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हुई बैठक में क्या कुछ हुआ खास, और बात करेंगे कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर एक्शन में आई जिला प्रशासन ने कौन से उठाए बड़े कदम। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बरेली धर्म प्रांत के धर्मगुरु बिशप इग्नाशियस डिसूजा स्वामी जी के एक खास मुलाकात में बात कर जाना कि क्या महत्व है पूर्ण शुक्रवार के बाद ईस्टर को मनाने का। इस पर स्वामी जी ने बताया कि जैसे कि नई शुरुआत की ज़रूरत पड़ती है, जब किसी भी नए जोड़े की शादी होती है तो वो लोग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भी नई शुरुआत होती है, और जब कोई नई कार खरीदता है तो उसकी भी एक नई शुरुआत होती है। और जो इस पूरे संसार के लिए सबसे बड़ी शुरुआत हुई, जब उन सभी राजनेताओं ने जो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे, पूरे शुक्रवार के दिन उन्होंने सोचा कि अब इसका समय समाप्त हो गया है और ये खत्म हो गया है, और उसके सभी चमत्कार उसकी मानव जाति की तरफ प्रेम और लोगों को सही रास्ता दिखाना और प्रवचन देने का कार्य भी खत्म हो गया है, और उन्होंने उसको दफना दिया। और तभी हम सबके सामने एक चमत्कार हुआ। मृत्यु के बाद प्रभु का तीसरे दिन उठना एक अनोखी शुरुआत थी। जिस तरीके से हर सुबह सूर्य निकलता है और नई शुरुआत होती है, हर शाम को सूर्य डूबता है तो भी अगले दिन की नई शुरुआत के लिए तैयार रहता है, और सबसे बड़ी शुरुआत थी प्रभु यीशु का तीसरे दिन जी उठना। चर्च में मौजूद रहे कुछ लोगों ने ईस्टर के बारे में जाना और उनसे बात की, तो सभी ने बहुत बड़े त्योहार के रूप में ईस्टर को मनाने की बात कही। On Friday we had the Good Friday, and on Sunday there is Easter, the Lord rise, and once again we all are celebrating Easter. What is the thing and what is Easter? We just want to know about all these things. We human beings in our life want new beginnings. Couples, when they get married, they have a new beginning. When a child is born, the child has a new beginning. When somebody buys a new car, they think they have got a new beginning. A student becomes successful in the exams, he or she enjoys a new beginning. But there was one of the greatest beginning on the universe, a new beginning. When all those leaders and all those who were involved in the crucifixion of our Lord Jesus on Good Friday, when they thought that a person has come to an end, his philosophy, his theology and his mission has come to an end, with this thought they buried him. But for our surprise, for the surprise of the world, Christ rose from death, defeating darkness, sin, cruelty, and the misery of human beings. Christ defeated all these, and he rose up and he began to appear to his disciples and to many others. And all those who had witnessed the empty tomb, they knew that he is risen from death. This is a very unique beginning. It is something very divine. It is God who gives a renewed life to the universe through Jesus Christ. Every morning there is a sunrise and there is a new beginning. And at the end of the day, with the sunset, we await for another dawn, another beginning. So the beginnings go on in our life. But the greatest beginning was in our blessed Lord Jesus Christ. The Word of God says that when Christ rose from the tomb,
as a witness, as a proof of his resurrection, a cloth was folded and kept in the grave itself. I think it is very natural. When a chick comes out of the egg, it doesn't carry the egg cell along. It leaves the egg cell behind. It leaves behind its past and comes to life. And you can see how much life is in a small chick. Empty tomb is like this egg. Christ opened it up. He left behind as a witness for his resurrection, defeat of the death, a cloth behind. The women and the disciples who went to the tomb, they were not very strong believing people in resurrection. But in their journey to the tomb and from the tomb, away from the tomb, what they experienced was a risen Lord who appeared, who spoke to them, and some of them even touched him. He ate bread with them, had breakfast. He also broke bread for them. He spoke to them. And finally he said, "Peace be with you." When we have peace among ourselves, it is a new beginning. And the best message of Easter, I feel, in any person, when he finds peace amidst trials, tribulations, suffering, sickness, calamities, and injustice in the world, when he finds peace, that is a resurrection and that is a new beginning in human life. And Christ has taught us this message. He has lived this message. And so therefore Christ would say, anyone who follows me will have life in eternity. And that life in eternity is possible when I am able to rise above my normal situation of life and get related, get connected to my God, get connected to Jesus, my Lord, who blesses me with the gift of peace. On this Easter day, for all the people in the world, for all those who believe and don't believe in Jesus Christ, I only wish peace in their families, peace in their individual lives, peace in their jobs, peace in their journey of life. May God bless them and may they enjoy the joy of Easter, a revitalized life, a renewed life with hope, with plenty of possibilities to live in the world, so that we rise above with petty things in this universe and become more human to each other and proclaim that great good news of Christ, that is the peace of Christ. A very happy Easter to all of you. बरेली से सी न्यूज संवाददाता संगीता सिंह की रिपोर्ट। हिंदू युवा वाहिनी जनपद बस्ती इकाई की चैत्र रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर तैयारी बैठक मुख्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि जिला संयोजक श्री बबलू निषाद उपस्थित रहे। बैठक में चर्चा करते हुए जिला संयोजक जी ने 13 अप्रैल 2021 को हिंदू नववर्ष के माध्यम से सभी ब्लॉकों पर ग्राम स्तर पर नववर्ष मनाने को कहा। चैत्र रामनवमी एवं हिंदू वर्ष कोविड-19 को ध्यान में रखकर मनाया जाएगा। जनपद के अनेक सम्मानित लोगों से सफल करने के लिए लगातार इसकी चर्चा की जा रही है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चैत्र रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिला अध्यक्ष श्री शशि भूषण सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी ब्लॉकों की परीक्षा करते हुए बताया कि अब की बार जनपद के पूर्व जिला प्रभारी स्वर्गीय अज्जू हिंदुस्तानी भैया जी हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी आत्मा की शांति के लिए वृहद रूप से शोभा यात्रा निकालकर उनके सपने को साकार भी संगठन करेगी। समस्त ब्लॉकों में डीजे झांकी के साथ कार्यकर्ता पदाधिकारी मुख्यालय पर आएंगे। यात्रा कंपनी बाग से प्रारंभ होकर मारवाड़ी मंदिर पांडे बाजार संपन्न की जाएगी।
जिलाध्यक्ष जनपद के समस्त संगठनों एवं हिंदू जनमानस से आग्रह किया गया है कि रामनवमी शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोग आगे आएं और सनातन धर्म को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। बैठक में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष राम दिनेश चौधरी, जिला महामंत्री संगठन विनय सिंह, जिला महामंत्री कन्हैया लाल, जिला मंत्री दुर्गेश भारतवंशी के साथ साथ साई मंदिर गांधीनगर राजा भैया, जयप्रकाश दास, अरुण गुप्ता, जितेंद्र राय, सुमित शुक्ला, बजरंगी शर्मा, अनिल कुमार, संतोष अग्रहरि, सुग्रीव चौधरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। जिले में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। नगर एवं छतौनी थाना के विभिन्न चौक चौराहों पर मॉक जांच शुरू कर दी गई है। बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटा गया और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। चालान के एवज में प्रति व्यक्ति 50 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। सदर एसडीएम के नेतृत्व में ये मास्क जांच की जा रही है। तो किस चीज़ का मास्क चेकिंग किया? मास्क चेकिंग अभियान चल रहा है हम लोगों का। देख रहे हैं कि कोरोना तेज से फैल रहा है, तो आवश्यक है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में हम लोग ये मास्क चेकिंग कर रहे हैं और आगे भी ये करेंगे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो कड़ाई से। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। पीलीभीत के रिछोला थाना क्षेत्र के माधोटांडा रोड पर एक भयानक हादसा हो गया। माधोटांडा रोड पर स्थित ग्राम देवीपुरा मीना मेमोरियल स्कूल चौराहा मोड़ के पास श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सेल्हा बाबा मेला देखने जा रहे थे। देवीपुरा मेमोरियल स्कूल मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में होने के कारण पलट गई। ट्रॉली पलटने के बाद चीख पुकार मच गई, तो वहीं लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। गनीमत रही कि पीछे से आ रहे वाहन रुक गए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की सूचना मिलने पर रिछोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। नृत्य एक महत्वपूर्ण कला है और मनोरंजन का बेहतर साधन है। वहीं योग से सुंदर काया का निर्माण कर जीवन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है और दोनों का सहयोग निश्चित रूप से एक सफल जीवन का रूप दिया जा सकता है। ये सारी बातें पट्टी नगर के युवा व्यवसायी और समाज सेवी अनुज जायसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पट्टी नगर स्थित गुडविल पब्लिक स्कूल में संचालित हार्ट बीट डांस और योगा एकेडमी में लोगों को संबोधित करते हुए कही। पट्टी नगर स्थित गुडविल पब्लिक स्कूल में हार्ट बीट डांस एवं योगा एकेडमी का संचालन किया जाता है। रविवार को इसका शुभारंभ किया गया और पट्टी नगर के प्रतिष्ठित युवा व्यवसायी अनुज जायसवाल अपनी पत्नी नेहा जायसवाल के साथ बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किए और फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा डांस और योग के माध्यम से लोगों को सम्मोहित कर लिया। मुख्य अतिथि के रूप में अनूप जायसवाल और उनकी पत्नी ने आर्थिक सहायता और सहयोग देकर बच्चों का उत्साह वर्धन किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।